जय सच्चिदानंद। हारे हो जी दादाजी, हाय हो जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. હારે હો જી પ્યારાજી, હાય હો જી પ્યારાજી, સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી. સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી. હારે હો જી દાદાજી, હાય હો જી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. જગત કુસંગે જ દુઃખ, જગત કુસંગે જ દુઃખ, કેવળ સતસંગે જ સુખ. કેવળ સત્સંગે જ સુખ. દાદાજીનું હસતું મુખ, દાદાજીનું હસતું મુખ, સમને દર્શન થાતા સુખ. સમને દર્શન થાતા સુખ. તે મહારાજી મહારાજી, સમૃદ્ધ સતિયા વિના દલડું ઠરતું નથી. સમૃદ્ધ સતિયા વિના ડલડું ઠરતું નથી. દાદાજી હારે હો જી દાદાજી, અમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. આ ભરમાં લુખું લાગે, દુનિયાભરમાં લોકો લાગે, સતસંગ વિના સૂનું લાગે. સત્સંગ વિના સૂનું લાગે. બિરહો દિવસ રાત જાગે, બિરહો દિવસ રાત જાગે. જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે, જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે. જી રોકો અતિક્રમણાજી, આતમ રમણા વિના ક્યાંય રૂચતું નથી. આતમ રમણા વિના ક્યાંય રૂચતું નથી. હારે હો જી દાદાજી, હારે હો જી દાદાજી, હારે હો જી પ્યારાજી. હારે હો જી પ્યારાજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
રે બોલી નહીં જઈ સચિદાનંદ. મારે ઇન્ટરનેટ કનેક્શન વીક લાગે. આઈ ડોન્ટ નો વાય. આઈ કોલ એનીવે. ઓકે શ્રેયા, અક્ષય કાકા નંબર 1, શ્રેયા નંબર 2. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી શાદવાદ વાણી, શાદવાદ વર્તન અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય એવી શાદવાદ વાણી, શાદવાદ વર્તન અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. દક્ષ નંબર 3. हाँ, हे आतंकवाद किसी भी तरहधारी उपदेशक साधु साध्य કરજાનું અવળવાદ અપરાધ અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ક્યારેય પણ ન કરાય, ન કરાવાય, ન કે કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારેય પણ કઠોર ભાષા, તંત્રીલી ભાષા ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંત્રીલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. हे आतंकवाद किसी भी तरहधारी आत्मा की वृत्ति स्त्री पुरुष पुरुष गમે તે લિંગધારીઓ તો त्या संबंधी सर्व સમય દેશ અધ્યાય જશને ન કીધે ન કરવા ન કરને પ્રત્યાનું ન કરી શકતી. हे आतंकवाद જે નરકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણું ન કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. સમરસવી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ વગર પરોક્ષ જીવન વગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ અવણવાદ અપરાધ અવિનય ન કરાય, ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. हे आतंकवाद જે જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો. જય सच्चिदानंद. शुद्धात्मा प्रति प्रार्थना आती है, किसको आती है? ओके श्रेया. સંજય સચિદાનંદ. હે અંતર્યામી પરમાત્મા, આમ દરેક જીવાત્મા બિરાજમાન છો તેમજ મારામાં પણ પ્રગટ સ્વરૂપે બિરાજેલા છો. આપનું સ્વરૂપ તે જ મારું સ્વરૂપ છે. મારું સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હું આપને અવૈધ ભાવે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અજ્ઞાતાએ કરીને મેં જે દોષો કર્યા છે તે સર્વે દોષોની આપની સમક્ષ જાહેર કરું છું. તેનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ પસ્તાવો કરું છું અને આપની પાસે ક્ષમા પ્રાર્થું છું. હે પ્રભુ, મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો અને ફરીથી એવા દોષો ન કરો એવી આપને શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આપ એવી કૃપા કરો તેમને ભેદભાવ છૂટી જાય અને બધા સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય. હું તમારામાં અમિત સ્વરૂપે તન્મે આકાર રહીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. વેરી ગુડ. જય સચ્ચિદાનંદ મહેશ દાદા. સંભળાય છે ક્લિયર? મારો જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય ત્રિમંત્ર બોલાય પ્લીઝ. હા, ઓકે. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણ, નમો સિદ્ધાનમ, નમો આયરિયાણ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોહે સૌ સાહુ, નમો તુએ સૌ
ऐसो पंच नमस्कारो आचो पंच कालो कारो सौ पावपणतरो पावपनाचनो मंगलानां च सौवे श्री मंगानम चौवेति वैसे परिणमा भवै मंगल परम हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद Jai Sachidanand. Daksh. सच्चिदानंद जय भगवान जी की जय 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 सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद क्या हाँ दादा सेलिब्रेशन टुडे Daily prayer, daily prayer. रोज Shreya, help करो. या भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से कायम दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे। इसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जय मात्र सेवा के लिए करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में संसार मॉडल पे और बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान की जैसे ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। तब तक कि हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और मैं कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जैसे चिन्ह Daksh, study prayer. हे राधा भगवान जो पढ़ाई में समझने जो बाधा आते हैं जो अंतराय आते हैं जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं उन तरह को तोड़ने का संकल्प लेता हूँ। आप ऐसे ही पढ़ना कि दर्शन रूप कैमरे टूट जाए बड़े से ढंग से करो, ऐसे मुझे परम शक्ति दीजिए जो सच्चिदानंद। Jai Sachidanand. Divya Ben. हे दादा भगवान Hey, दादा Dada भगवान Bhagwan. हमने आपके बच्चे हम हम हैं के आपके आपके बच्चे. बच्चे दिल के हैं सच्चे दिल दिल के 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 हैं सच्चे. सच्चे फिर भी है कच्चे फिर फिर भी भी है है कच्चे कच्चे. अच्छे काम करेंगे अच्छे अच्छे काम करेंगे करेंगे अच्छे. अच्छे अच्छे Very good, Divya Ben. Daksh, separation prayer. Suratna Jagana Palagodak Salvation after learning the extent review. Dengan आपकी लो दक्ष रिलेटिव है जो सच्चिदानंद Shreya. जय सचिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान તમે જુદા છો, શ્રેયા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો, શ્રેયા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમનન્ટ છો, શ્રેયા ટેમ્પરરી છે। જય સચિદાનંદ। Jai Sachidanand. Okay, very good. Okay, आपका सबका रिपोर्ट तो बहुत अच्छे आता है। अभी रिपोर्ट में अभी स्टैंडर्ड हो गया सब रूटीन, डेली रूटीन सब ठीक हो गया श्रेया? हाँ ये अभी कुछ याद नहीं रखना पड़ता है कि क्या करने का क्या करने करेगा? नहीं दाक्ष आपको दादा मम्मी याद कराती है कि आपको अभी रूटीन हो गया? और रूटीन हो गया पर मैं उठ नहीं पाता हूँ सुबह जल्दी। ओके विताक्षी बा हाँ तोरल ओके तो
कल के लिए अब मम्मी को पूछना कि अभी सब ठीक ठाक है अपना डेली रूटीन में, ओके? हाँ क्योंकि अभी स्टैंडर्ड हो गया है ना, वेरी गुड। तो अभी आप भाई ज्यादा इन लोग का लगभग 14-15 डेली रूटीन होता है ना सुबह से शाम तक, तो उसमें हम लोग को अभी जागृति बहुत सारी आ गई है। हम्म, तो रिपोर्ट में सब ए ऑलमोस्ट ए आता है सब। हम्म, भाई दादा સંભળાય છે? ભાઈ દાદા સંભળાય છે? हाँ समझाइए। ओके 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 ओके। तो आज इस स्टडी के पहले आप सिम जय जयकार बोलते हैं चीज एक साथ करने के लिए? पिताक्ष क्या बोलती है? श्रेया? एक बार ही किया था। दक्ष? दादा मैं नहीं बोलता हूँ, पर मैं आज सोने के पहले बोल के पढ़ाई कर लूंगा। सोने के पहले ये बोल लूँ। तोरल? तोरल आप स्टडी के पहले असीम जय जयकार 8 मिनट करते हैं तो श्रेया आपको टाइम नहीं मिलता है? पता है, इम्पोर्टेंस क्या है मालूम है? असीम जयकार 8 मिनट बोलती। पिताक्ष बा बोलिए। हाँ मैंने आज बोला था। अभी बोलो फायदा क्या होता है करने से आपको? हाँ ऐसे जब वो पढ़ने बैठे हैं तो उसमें पूरा चीज कॉन्सेंट्रेट होता है और तुरंत याद भी रह जाते परमानेंट। ओके, पहले से अच्छा लगता है अभी? हाँ ओके, तो श्रेया यू नीड टू एक्सपेरिमेंट, ओके? कल करूंगी। नहीं कल नहीं, ये तो एवरीडे करने का। बस खाने खाते और एवरीडे हैबिट कर देने का। कल ब्रश से करते। शुरू करूंगी रेगुलरली। ओवरऑल आपको भी ओके? ओके, तो महेश दादा कल हमने कलम नंबर 4 इंट्रोड्यूस किया था। और कलम नंबर 4 बोलो। कौन बोलेगा? बोलो। श्रेया? की आवाज कट हो रही है। कलम नंबर 4 बोलिए। दादा भगवान મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ક્યારે પણ ન કરાય ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। अच्छा, तो महेश दादा उन लोग के साथ बातें करो कि हाँ कैसे अपने को मिस्टेक उसमें से मिलता है, अभाव तिरस्कार, वो क्या चीज है अभाव तिरस्कार? तो बोला है, हे दादा भगवान, मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति किंचित मात्र भी अभाव तिरस्कार, जो अभाव होता है ना किसी की भी जीव मात्र प्रत्यय, तो अभाव होता है, तो हम भगवान का भी क्या है, अंदर भगवान बैठे हैं, तो व्यक्ति का अभाव करते साथ साथ में भगवान का भी अभाव कर देते। कोई व्यक्ति अच्छी नहीं लगती है तो हमें हम तिरस्कार होता है, अभाव हो जाता है। दादा भगवान ने बताया कि आप व्यक्ति का भी अभाव किया, वो अंदर बैठे हुए भगवान का भी अभाव किया। जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, गाय है, काव, तो हम पत्थर मारते कभी कभी, जो भी जीव जंतु को मार भी डालते, तो उसके लिए भी क्या है, अभाव अभाव होता है। कुत्ते के लिए भी अभाव होता है कि ये मेरे सामने क्यों आया, बाजू में से क्यों गया। गाय के लिए भी कि मारेगी उसे, तो उसको तिरस्कार होता है। उसके लिए भी जीव जंतु के लिए भी तिरस्कार होता है, आदमी के भी तिरस्कार होता है। फिर खाने के लिए भी कभी अभाव होता है, जो सब्जी अच्छी नहीं लगती है
तो सब्जी में भी भगवान तो है ना। तो वो अभाव तो नहीं, किसी व्यक्ति के लिए भी अभाव नहीं होना चाहिए, तो खाने के लिए भी अभाव नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज के लिए भी नापसंद यानी कि अभाव नहीं होना चाहिए। तो तिरस्कार भी नहीं होना चाहिए, मुझे क्यों खाना दिया, मैं ये सब्जी नहीं खाती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्यों बनाते हैं बार बार। इस तरह से हमारा माइंड चिड़ियापन हो जाता है, मेरी बुद्धि भी एक भाई तिरस्कार हो जाता है। दादा भगवान बोलते थे मेरे जीवन में कभी भी किसी के लिए अभाव और तिरस्कार हुआ ही नहीं। कोई भी नापसंद खाना आया, नापसंद व्यक्ति आई, नापसंद चीज आई, तो कभी भी हमने अभाव नहीं किया, तिरस्कार नहीं किया, मुंह नहीं बिगाड़ा। कि वाणी में भी मेरे उल्टी सुलटी वाणी, ये व्यवहार भी उल्टा सुलटा हमारा नहीं हुआ। इसलिए दादा भगवान ने खुद ने जीवन अपने बचपन से अभी तक जो जिए, जहाँ जहाँ उन्होंने ये अभाव तिरस्कार हुआ, तो खुद की गलती उन्होंने देखी। तो बचपन में उनका एक एग्जाम्पल है कि दादा भगवान को घी ज़्यादा चाहिए, वो पूरन पूरी बोलते, फिर मिल्क पीते, दूध पीते, दूध भी ज़्यादा चाहिए तो कभी कम मिला तो उसके लिए अभाव हुआ था, क्योंकि मुझे क्यों कम दिया, बड़े भाई को ज़्यादा दिया, तो वेड़मी में घी कम दिया। तो उन्होंने एक ऐसे ही चिढ़ गए, यानी कि अभाव हो गया, यानी कि खाना छोड़ दिया। फिर उनको मालूम पड़ा हो, तो ये अभाव करने से, तिरस्कार करने से भी ये दो खोट हुई, एक तो खाना भी गया और पेट में भूख भी लगी। तो बचपन का ऐसा है, उनका एक दो एक्सपीरियंस ऐसा है। तो जहाँ जहाँ मुंह बिगाड़ा, रूठ गए, अभाव हुआ खाने के लिए, तो वो तुरंत उनको एक पूरे नाइट ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि अभाव तिरस्कार करते थे खाने पे मुझे दो खुट किया, दो खुट खाया। एक तो एक खाना तो गया, ऊपर से मम्मी को दुख हुआ कि भाई खाना नहीं खाया, तो मम्मी दुखी होती है ना, अपने रूठ जाते हैं तो किसी भी खाने की चीज में। तो इससे दादा को सीख मिली कि कभी भी रूठना नहीं, कभी भी खाने पे अभाव तिरस्कार नहीं करने का, रूठ नहीं जाने का, दो खोट नहीं खाने। एक जो आई है खोट, खाना पसंद नहीं है, हम कम खाते, अगर रूठ जाते और खाने पे अभाव करके गुस्सा करते, चिड़चिड़ियापन करते, रूठ जाते, तो दो खोट। एक तो खाना भी गया और मम्मी को भी नाराज किया। तो जीवन में उनको ऐसा नक्की किया, कभी भी खाने के लिए रूठना नहीं, अभाव नहीं करना, कोई व्यक्ति के लिए भी तिरस्कार नहीं होना चाहिए, अभाव नहीं होना चाहिए। तो दादा भगवान के जीवन में ऐसे लेसन हमें दे गए कि कभी भी रूठना नहीं, तिरस्कार नहीं करना। और मित्र के लिए भी उन्होंने मित्र को बोल दिया, आधी रात को काम हो तो मेरे पास 12 बजे, एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा है कि मैं रात को भी कभी भी आपके यहाँ नहीं आऊँ, यानी कि आप आना। क्योंकि कभी हम मित्र के पास ऐसे ही रात कुछ गए और खाने के टाइम गए कि कुछ ऐसे ही गए, तो उनको ऐसा लगेगा कि मित्र मेरे घर पे क्यों आए, कुछ मांगने के लिए आए, उसको अभाव होगा। तो सभी मित्र को बोल दिया था कि आप कभी भी रात को मेरे घर पे आना, नहीं आऊँगा, मैं कभी भी मांगूंगा भी नहीं आपके पास, एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखूंगा। मगर आपको कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत पड़े, पैसे की जरूरत पड़े, मदद की जरूरत पड़े, किसी भी दिक्कत की, तो आधी रात को भी मेरे घर पे आना, ऐसा रखा था उन्होंने। मगर वो निमित्त नहीं बने किसी के घर आधी रात को जाने के लिए, क्योंकि सामने वाले में कुछ
भाव बदल जाता है, अभाव भी हो जाता है। तो ऐसे किसी जीव मात्र को कभी भी उन्होंने दुख न हो और हमारे निमित्त अभाव तिरस्कार न हो, वो व्यवहार में इतनी काळजी लेते थे और जागृति रखते थे। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है उन्होंने जीवन में कि मम्मी को भी दुख न पहुंचे, इस तरह से उनका व्यवहार था। जब भी घर पे निकले तो बोल के जाते थे और मम्मी के साथ ही खाना खाते थे। दूसरे उनके बाहर खाना खा के आए भूल से मित्र के घर, मगर घर जाके मम्मी के साथ फिर से खाना मम्मी के साथ खा लेते थे, तो मम्मी को भी दुख न हो कि मेरे बेटा बाहर खा के आया, मुझे अकेला खाना पड़ा। तो मम्मी को भी अभाव न हो, मम्मी को दुख न हो, मम्मी को भी बेटे के लिए कुछ तिरस्कार न हो, सामने वाले को भी अभाव न हो, खुद खुद वो भी ध्यान रखते थे, काळजी रखते थे दोनों तरफ। खुद ऐसा व्यवहार करते, खुद को अभाव न हो दूसरे के लिए, दूसरे को उनको लिए ना हो। इस तरह से मम्मी को भी संभाल लेते थे, मित्र को भी संभाल लेते थे और कोई कोई भी चीज के लिए कभी तिरस्कार नहीं किया, तो मुझे पसंद नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है, अभाव तिरस्कार। जीवन में सुखी होना है तो सभी चीज के लिए, व्यक्ति के लिए हम ऐसे जीवन में एडजस्टमेंट लेना है, कभी भी हमारा मन न बिगड़े, भाव न बिगड़े, हमारी वृत्ति न बिगड़े, यानी कि अभाव न हो और रूठ नहीं जावे हम, तिरस्कार न हो किसी जीव मात्र से और चीज से कभी हम तिरस्कार भी न हो। कभी कभी क्या है, कोई चीज पसंद नहीं है तो उसके लिए तिरस्कार होता है। तो जीव जंतु मच्छर को, ये मच्छर और चींटी आती है, मकोड़ा आता है, कि जो भी जीव जंतु छोटी छोटी, उसके लिए भी हम क्या है, कॉकरोच होता है तो उसके लिए अभाव नहीं होना चाहिए, उसको मारना भी नहीं चाहिए, और उसके लिए हम अभाव होता है और मारते भी, हिंसा भी हो जाती है अभाव के वजह से। तो जो चीज पसंद नहीं है तो दादा बोलते उसमें भी भगवान है, मगर उसको उसके लिए भी अभाव नहीं होना चाहिए और हिंसा भी नहीं। एक बार अभाव हुआ और हिंसा की शुरुआत हो जाती है। इसलिए सभी जीव मात्र में परमात्मा है, ऐसी दादा भगवान ने हमें समझदारी दी है। तो किस तरह से हम सभी जीव मात्र में भगवान है, और किसी और जो भी चीज हमें प्राप्त होती है, संजोग प्राप्त होता है, उसमें भी हमेरा ही एक उदय कर्म बोलते हैं ना, ही हिसाब है। इसलिए कभी भी अभाव तिरस्कार न होना चाहिए। कभी कोई माँ बाप के लिए भी तिरस्कार करते, भाई बहन के लिए तिरस्कार करते, टीचर के लिए भी तिरस्कार करते, वडीलों के लिए तिरस्कार करते। जो चीज हमारे फ्रेंड सर्कल के लिए भी, कोई कमजोर आदमी होता है कुछ, उसका हम तिरस्कार करते, कुछ नाम गिरा के, यानी कि कुछ उसकी कमजोरी आती होती होगी, उसका उदय कर्म, हम किसी का ऐसे चिल्लाते हैं उसको, तो ये अभाव होता है। कोई व्यक्ति का हम मस्करी भी कर देते हैं, टीचर की भी मस्करी करते हैं, फ्रेंड की मस्करी करते हैं, वो अभाव बोलते हैं। फिर उसका जो ऐसे एक दो वीकनेस होती है, उसके लिए हम उसको तिरस्कार करते हैं, जाने दो ने, ये मेरी फ्रेंड ऐसी है, उसके साथ तो बोलना ही नहीं चाहिए, बात भी नहीं करना चाहिए। वो मैं नोट को उनको देती हो, वो मुझे नहीं देती है, मैं उसको हेल्प करती हूँ, वो मुझे हेल्प नहीं करती है, ये नहीं करता है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज में क्या है, हम एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं। मैंने मदद की तो उसको मदद करनी चाहिए। तो दादा भगवान तो कैसे बोलते हैं
कि कभी भी मदद चाहिए तो मेरे पास आ जाता। मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता, मैं आपके पास कभी भी नहीं आऊँगा, मगर आप कभी भी मेरी आधी रात को भी ज़रूर है, विदाउट एक्सपेक्टेशन, तो आप मैं तैयार हूँ मदद करने की। तो इस तरह से बहुत बातें हैं, ये अभाव तिरस्कार इस तरह से हम। और सबसे बड़ी बात वाणी से होता है। अपनी वाणी ऐसी नहीं होनी चाहिए दूसरे को लगे अभाव हुए और तिरस्कार हुए। मन से भी दादा भगवान बोलते मन से भी नहीं होना चाहिए और व्यवहार वर्तन से भी। इस तरह से हम घर में रहे, हमारा मुंह पर ऐसा बिना बिगड़ा हुआ हंसता हुआ ऐसा ही हमारा व्यवहार भी होना चाहिए कि वो मैं दूसरे को अभाव ना हो। और कुछ मालूम पड़ा पूछना है तो बच्चों लोग? पूछना। हाँ, अभी हम उसके पूछेंगे उन बारे लोग में को डिटेल। भी। महेश दादा, हाँ। ओके। तो अभी महेश दादा ने बोला, तो पहले इम्पोर्टेंट तो खाने की चीज है। तो श्रेया, कौन सा पसंद नहीं है आपको? और खिचड़ी वेजिटेबल? नहीं पसंद। हाँ, खिचड़ी नहीं पसंद। खिचड़ी नहीं पसंद। वेजिटेबल्स में? ब्रोकली। ब्रोकली? क्या ब्रोकली? ओके, ब्रोकली नहीं पसंद। नहीं पसंद। और दाल? दाल पसंद है। दक्ष? दादा मुझे सारी चीज पसंद है पर करेला नहीं पसंद। वेरी गुड। तोरल? तोरल सुनाई नहीं देता है। मेरे को ओट्स नहीं पसंद है और बाकी वेजिटेबल सब पसंद है। भिंडी? हिताक्षी बा? वैसे तो मुझे सारे ही पसंद है, सिर्फ दाल और गलके की सब्जी। दरिया? हाँ क्वेश्चन आपने सुना हमारा? हाँ हाँ, के क्या अच्छा नहीं लगता। हाँ, क्या नहीं अच्छा मुझे लगता? करेला अच्छा नहीं लगता, सिर्फ मुझे करेला अच्छा नहीं लगता। ओके, महेश दादा, आपने सुना? आपने बोला कि सब अच्छा होना, सब टेस्ट अच्छा होना होता है। उन लोगों ने बोला क्या करेंगे उन लोग? क्या हाँ करना मांगता है उन लोग को? तो अच्छा नहीं लगता है, वो बात बराबर है। करेला में तो गुण है, वो कड़वा है। अगर आप दादा भगवान बोलते थे आप कड़वी चीज नहीं खाएंगे तो बाद में मेडिसिन कड़वी लेनी पड़ेगी। तो शरीर स्वास्थ्य रखने के लिए जो छठी कलम है ना, सातवीं कलम नम्रति खुराक को आएगी अभी बाद में, अभी तो चौथी कलम है। मगर ये तो करेला आएगा तो आप उसके लिए अभाव नहीं होना चाहिए, तिरस्कार नहीं होना चाहिए। मम्मी क्यों बनाया, मुझे नहीं खाना है। तो इस तरह से हम गुस्सा करते, तिरस्कार करते, क्लेश करते, अभाव करते तो मम्मी को कितना दुख होता है। तो इस तरह से उसमें भी हम भगवान, सब्जी में भी भगवान है, शुद्धात्मा भगवान। और हमें पसंद नहीं है तो थोड़ा कम खाना, मगर दूसरा एडजस्टमेंट लेना। मम्मी की बोल भी सकते हैं मुझे करेला पसंद नहीं है तो आप दूसरी सब्जी बनाओ, मगर बन गई फिर मम्मी भूल गई और किधर भी खाने के लिए गए हम, घर पे के कोई गेस्ट के घर गए, तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आया वो एडजस्टमेंट कर लेने का, एडजस्ट एवरीवेयर बोलते हैं। तो मगर हम उसके लिए अभाव नहीं होना चाहिए, सब्जी के लिए तिरस्कार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सभी सब्जियां में विटामिन होता है, कोई ना कोई गुण होता है।
तो जो नहीं पसंद है दादा भगवान तो बोलते थे पहले खाते, बाद में दूसरी चीज खाते, पहले नहीं पसंद वो सब्जी पहले खाते थे। तो इस तरह से संभाव से निकाल करते थे दादा भगवान। ओके कभी મહેશાનંદ भी એક મિનિટ, આપણે દિવ્યાબેન અનમ્યુટ કરો. તમને ખાવામાં શું નથી પસંદ? દૂધી, ભીંડી, બીજું? બીજું બધું કારેલા ભાવે છે? કારેલા, હા, ખાલી દૂધી જ ના ભાવે. ઓકે તો મહેશાનંદા, दूधी तो बहुत पसंद होती है। दूधी में तो बहुत गुण होते हैं। दूधी का जूस लोग सुबह मॉर्निंग में लोग हार्ट के लिए, तबीयत के लिए दूधी का जूस पीते हैं लोग। जूस નહીં પણ દિવ્યાબેનને શું કરવું જોઈએ? कारेला में દૂધી भी इतना गुण है। दूधी तो बहुत चबाने के भी बहुत इजी होती है, और थोड़ा आपको जो भी मिर्ची विर्ची ज्यादा खाते, मसाला खाते, उसमें ऐसे मम्मी अच्छी तरह से मसाला डाल के दूधी इतनी टेस्टी लगती है। दूधी चना का साग बोलते, चना उसको ऐड करते, वो दूधी चना के सब्जी। तो अगर दूधी नहीं है अकेली पसंद तो दूधी चना का साग बोलते, वो खा लेने का। मगर वो कितनी गुणकारी है, दूधी सबसे ज्यादा गुणकारी है, એટલે आपको फायदाकारक है, इसलिए દિવ્યાબેન खाने का। કેમ દૂધી નથી ભાવતી? કેમ હા, કે પછી દૂધી ખાઉં ને પછી એકદમ છે ને એકદમ ખલો તેજ થાવતો હોય છે. તો હવે મમ્મીને કહેજે વેરી ટેસ્ટી બનાવે ને પછી ટ્રાય કરજો. ઓકે ઓકે, ઓકે ટ્રાય કરજો, પછી અમને જણાવજો કે કેવી સરસ મમ્મીએ બનાવી હતી. અને મહેશ દાદાને શું કહ્યું કે દૂધી ખાવાથી બહુ ફાયદો થાય. તમારે મોટું થવું છે કે નાનું રહેવું છે? મોટું થવું છે. પછી દૂધીની જરૂર પડે કે ના પડે? ભલે, પપ્પા મમ્મા પપ્પાને પૂછી જોજો અને ટ્રાય करजो. ओके ઓકે. ओके बच्चे लोग कभी ये खाने के ये महेश दादा ने बताया ना, प्लीज बी अवेयर, एडजस्ट। जो खाना आता है प्लीज एडजस्ट करो, और मम्मी के साथ झगड़ा मत करने का ये क्यों बनाया होने का। ओके इतना एडजस्टमेंट करो, बताना कल कैसे होता है. ओके जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद।